learned about the unbalanced transportation problem condition and degeneracy condition. Okay. Now, and I said in the previous lecture that in the next lecture we will solve the problem of optimality. We will solve the problem of optimality by using modification methods. Okay. So today we will learn that how we will solve a transportation method and we will get the optimal solution using MODI method. So this MODI method is have two parts. That is, MO is specified for modified or modification, and DI is called your distribution. Okay. So after combining MO from the modified and DI from the distribution, this is called your MODI method. Okay. Now, first, let's what are the steps involved in this modification method. So let us see how we will solve, and after that we will solve an example. We will solve an example of modified methods. So in the method means in the modified method, the modified distribution method were also known as MODI method or UV method. Here UV means not ultraviolet. UV means here you specified your row numbers and V specified your column. Okay. Methods provide a minimum cost solution to the transportation problem. Okay. Actually, when we were using the three method, that was NWCM, LCM, and WAM methods, so we were getting the feasible solution, initial feasible solution. Now by this method, we will check that either the solution that we have got is optimal or not. Okay. In the stepping stone method, we have to draw as many closed paths as equal to the unoccupied cells for their evaluation. Actually, the stepping stone method is not in your syllabus. Okay. So, but the modified is more accurate than your stepping stone method. Okay. To the contrary, in MODI method, only closed path for unoccupied cells with highest opportunity cost is drawn. It is used to save the time over stepping stone method. It provides a new means of finding the unused route with the largest negative improvement index. Means in the modified method, you will have to form a closed path. You have to form a closed loop path by which you will try to get that either there is any possibility to improvement. Is there any possibility to improvement to reduce our cost? Okay, so this is your modified method. Steps: determine an initial feasible solution using any one of the three methods given below, that is northwest corner rule, matrix minima, and Vogel approximation method. All these three methods we have already discussed. Now, in the previous lecture, I also told you that if you are trying to solve the modified method, then you will try to use WAM method. You will try to use WAM method. Because when I told you about the WAM method, then I also told you that the WAM method is more optimal. The solution found by the WAM method is either optimal or closer to optimal. Okay. The solution found by the WAM method either optimal or closer to optimal. Okay. So first of all, we have to find the basic feasible solution initially. Okay. By using any of the three methods, but the preference will be given to Vogel method. Either you can also use rest of these two, that is NWCR or matrix minimum. And most of the books, when they test the optimality, they use matrix minimum. Okay. Now, after getting the initial feasible solution, you have to determine the values of dual variables.
variables ui and vj using the formula ui plus vj equal to cij. Let us see an example here. I am taking, for example, suppose that you have three cells D, E, F, and G. Okay, and here A, D, and C. Okay, these D, E, F, G are your destination, and A, B, C are your source. Okay, D, E, F, G are your destination, and A, B, C are your sources from where you have to supply, and up to here you have to supply. These are the D, E, F, G. Suppose that here have something 1, 3, 5, 6, and just like 2, 3, 1, 5, and here 2, 5, 7, and 10. Okay, so these are your per unit cost. So what are the ui and vj? ui is your these row, means this row is called your ui. Okay, let's increase the size. This ui is this row, and this is also your ui, and this is also your ui, means ui, and where I stands for up to 1 to n. So when you will write this, so ui will become u1, here ui become u2, and here ui become u3. These are the rows. Okay, now vj, these are the your vj, means this v1, v2, v3, and v4. Okay, so these are your vj. Now Cij, what is Cij? Your Cij is the value of the cost of occupied cells. Suppose that if you have any allocation, if you have any allocation on this cell, suppose that you have allocated this cell. Okay, so what is the value of this cell according to the formula, that ui plus vj? Okay, so we have to write ui plus vj for allocated cell. So this is u2, so means we will write u2 plus vj, and in which column is occur, that is v4. So this is and equal to how many? That is 5. Okay, so this become the value of ui plus vj. You will write the value of ui plus vj like this. Okay, so here this is cj. So here if we will write, so this is ui plus vj equal to cij, means this. For the occupied cells, the ui plus vj equal to cij, you will write like this. Okay, for occupied cells, the ui plus vj equal to cij will be calculated for occupied cells, means the cells which have allocations. Okay, so this is your second step. Now compute the opportunity cost using delta ij. Compute the opportunity cost using delta ij equal to cij minus ui plus vj. So this opportunity cost will be calculated for your unoccupied cells. This is
for your unoccupied cells. Okay, suppose that, let us see in the table here, we have this table. Okay, and we have to calculate delta ij, but I will write here dij. Okay, dij equal to cij minus, and within the bracket ui plus vj, and bracket closed. Okay, so this formula will be used to find the opportunity cost in the your unoccupied cells. Means this will show that is there any chances to improvement for the optimal solution. Okay, means this relation shows that either is there any chance for the improvement. So how we will get it? Suppose that we have to find the dij for this cell. Okay, so how we will derive this? Dij will be found by Cij. What is the Cij for this? U1 plus Vj. And from where we will get the value of Cij? From this value. Okay, from this value we will get the value of Cij. Means Cij equal to 3. Cij is 3 minus, and we will get the value of ui plus vj from these equations, just like ui plus vj. Okay, so by using these relationships we will get the opportunity cost for unoccupied cells. Okay, this is your step 3. Now check the sign of सर each. एक डाउट है Yes, सर, जो आप अभी एक्सेल वाली स्लाइड थी सर, उस पे जाइए, एक बार कुछ पूछना था उसमें। एक्सेल में? यस सर। हाँ जी, बोलिए। तो सर इसमें सर डी आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, तो सर यू आई प्लस वी जे तो ऑलरेडी सी आई जे है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डी आई से 0 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, कैंसिल नहीं होगा। Actually, you will find the value of Cij by using ui plus vj. समझ में आया? आपको पहले Cij की वैल्यू वही होगी और ui प्लस vj की भी वैल्यू वही होगी। ui प्लस vj की वैल्यू आपको इससे निकालनी है, इस रिलेशन से। यहाँ पर ui प्लस vj इक्वल टू जो Cij लिखा है, तो ये इनका सम वैसे आएगा, लेकिन ये ui प्लस vj की वैल्यू अलग अलग आएंगी। नहीं समझ में आया? नो सर, चलो एग्जांपल सर सॉल्व करके बता दीजिए तो शायद exactly. Let us I show you in the next slide. Let us see here. ये देखिए, कहाँ से है? Yes. देखिए, suppose that you have this relationship Cij equal to ui plus vj. Okay, now for the C14, let us see. C14 means for this that I have selected. Okay, C14 के लिए अब यहाँ पर इसका रिलेशनशिप दिया हुआ है ये, ठीक। यहाँ पर देखिए C14 के लिए U1 प्लस V4, मतलब कि फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। सो अब यहाँ पर जब ऐसे आप सारे इक्वेशन बना लेंगे तो उसमें फिर अब एक जो होता है, चाहे U1 को, चाहे U2 को, चाहे U3 को, चाहे V1 को, चाहे V2 को, चाहे V3, चाहे V4 को, उसमें से एक को आर्बिट्रेरी 0 मान करके फिर जितने भी U1, U2, U3 और V1, V2, V3 हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, आफ्टर यूजिंग दिस रिलेशनशिप C14 इक्वल टू U1 प्लस V4 इक्वल टू U1 इक्वल टू आया है 10। अब एक्चुअली क्या है कि जो आप जो DIJ निकालेंगे, जो DIJ निकालेंगे, ये देखिएगा, ये यहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल्स के देखिए C14, यहाँ पर ये C14 है, ठीक। फिर अगला है आपका C11, देखिए C11 ये ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए है, ठीक। अब जब आप DIJ निकालेंगे, लेट अस सी इन द नेक्स्ट, उसमें ये आपने DIJ निकाला है,
ये आपने डीआईजे निकाला है, तो ये डीआईजे अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए है, याद रखिएगा। मतलब कि जैसे आपने सीआईजे की वैल्यू यहां पर कितनी ली थी, ये यहां पर सीआईजे आपने लिया है U1 इक्वल टू C1 for 10, ठीक। आपने यहां पर लिया है ये CIJ की वैल्यू 10 ली है ये। नाउ अब यहां पर आइएगा, जब ये हम D12 निकालेंगे तो यहां पर CIJ है फॉर नॉन ऑक्यूपाइड सेल, तो CIJ वो वैल्यू होती है जो उसमें पर यूनिट कॉस्ट होती है। तो अब अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए लेंगे, तो मान लीजिए आप यहां पर टेबल में आइए, अब यहां पर अनऑक्यूपाइड सेल्स यहां पर ये वाला है, ठीक। तो इस पे CIJ की वैल्यू है 30, यहां पर लिया था तो ये CIJ था 10। ये इसका इस्तेमाल जो हम यहां पर ले रहे हैं ये केवल U1 U2 U3 और V1 V2 V3 की वैल्यू निकालने के लिए। अब जैसे अगर हम सिमिलर यही चीज जो हम यहां पर इक्वेशन में लिख रहे हैं, ये चीज अगर हम डिक्टो ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकालते हैं, यही चीज अगर हम ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकालते तो ये 0 कर देता। मतलब कि जैसे आपने कहा कि CIJ माइनस UI प्लस VJ, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, एग्जैक्टली हो जाते हैं। लेकिन हमें ये जो DIJ है तो ये हमें नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकालना है। तो फिर नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हमारे पास इस CJ की वैल्यू CIJ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। UIJ की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, लेकिन CIJ की वैल्यू वो नहीं होगी जो यहां पर होगी, वो ये यहां पर नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए होगी। ओके जया, क्लियर हुआ? जया, यस सर। एक्चुअली जो हम ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार बता दूं, जो CIJ लिया गया है UI प्लस VJ वो ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए है, और जो DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ लिया गया है वो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए वो फॉर्मूला है, वो दैट इज यूज्ड फॉर नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स। सो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स में CIJ की वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो जाएगी। जैसे यहां पर आपने CIJ लिया है UI प्लस VJ, तो यहां पर CIJ की वैल्यू 10 आएगी। जब DIJ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इन नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए लेंगे, ये वालों के लिए। तो यहां पर जैसे CIJ 10 है तो यहां पर CIJ नॉन ऑक्यूपाइड के लिए 30 होगा। तो इस वजह से वो प्लस माइनस होकर के कैंसिल नहीं होगा। अगर हम DIJ भी इसी के लिए लेते हैं तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी कास्ट की जरूरत कहां रखें? अपॉर्चुनिटी कास्ट का मतलब ये है कि जो हमारे ये एलोकेशन है, मान लीजिए ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ये एलोकेशन है, ये तो हमारे ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं। अब हमें ये निकालना है कि क्या जो बचे हुए रूट हैं, मतलब S1 से D2, S1 से D3, S2 से D1, S2 से D2, क्या इनमें से कोई ऐसा शॉर्टेस्ट रूट है कि ये एलोकेशन में से हम चेंज करके, इन एलोकेशंस में से चेंज करके हम कोई और रूट सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारी कॉस्ट को और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इस वजह से हमने जो लिया है वो इनके लिए नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स लिए हैं, वो ये वाले। तो जब भी हम CIJ लेंगे तो जैसे हमने वहां पर CIJ लिया था, ये वाला CIJ हम यहाँ का लेंगे, और जब इसमें CIJ लेंगे तो जो नॉन ऑक्यूपाइड इन वाले में से यहाँ से लेंगे। तो जब ये वैल्यू दूसरी होगी यहाँ पर और ये वैल्यू यहाँ पर दूसरी होगी तो कैसे कैंसिल होंगे? ओके ओके, ठीक है जय, समझ में आ गया ना? Okay, so let's move ahead. Next step. I have already told you about the WAM method. So when we will solve this problem, so we will not apply WAM method. We will directly solve from the optimality test. Okay. So now here, so check the sign of each opportunity cost. Now, if Dij is greater than 0, then current feasible BCPX solution is optimal and stop this procedure. Means अगर आप जो Dij निकाले हैं, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आप वहां पर CIJ पहले वाला और CIJ बाद वाला एक जैसा रख देंगे तो उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। लेकिन जब दूसरा वाला CIJ रखेंगे तो Dij की वैल्यू आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन, 3 condition will be possible. Okay,
तो if the Dij is greater than 0, if all the Dij, और हाँ one thing more, we have to find the Dij for all the non-occupied cells. We have to find the Dij for all the non-occupied cells. Okay. So if any one of the is greater than 0, is greater than 0, or all of the 0. If anyone is less than 0, so there is possibility of optimal solution. If all the Dij are greater than 0 or equal to 0, so it means our solution is optimal. Okay. If all Dij's are greater than or equal to 0, it means our solution is optimal. And if any Dij has negative value, if any Dij what we have to do? Select the unoccupied cell with the smallest negative opportunity cost. Okay. Select the unoccupied cells. Unoccupied cells means which is not allocated, which have not any allocation. Okay. So select the unoccupied cell with the smallest negative opportunity cost as the cell to be included in the next solution. What we have to do? Actually, after selecting this, we have to form a closed path loop. Okay. जो सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हम वो वाला सेलेक्ट करेंगे. ठीक. अब वो सेलेक्ट कैसे करेंगे? जहां पर Dij की वैल्यू नेगेटिव आई है वहां से. अब what we have to do? We will assign sign. We will assign प्लस एंड माइनस साइन अल्टरनेटिवली. मतलब कि जहां पर हमारी कॉस्ट नेगेटिव आई थी, किसमें? अनऑक्युपाइड सेल्स में. जहां पर अनऑक्युपाइड सेल्स में कॉस्ट हमारी नेगेटिव आई थी, हम वहां से प्लस माइनस ऐसे करके एक क्लोज पाथ लूप बनाएंगे. अब वो कहां से होंगे? हम वो जो लूप ड्रॉ करेंगे वो जहां से स्टार्ट करेंगे वहां तक जाएगा जहां पर ऑक्युपाइड सेल है. ड्रॉ ए क्लोज पाथ लूप और फॉर द अनऑक्युपाइड सेल सेलेक्टेड इन द प्रीवियस स्टेप. जहां से हमने नॉन ऑक्युपाइड सेल से सेलेक्ट चालू किया था, अगला वो जाएगा वहां पर ऑक्युपाइड सेल तक. फिर उसके बाद वो वहां से 90 डिग्री पर टर्न होगा उस तरफ जहां ऑक्युपाइड सेल्स है. ऑल द सेल्स मतलब कि जितने भी पाथ होंगे वो वहां से टर्न होंगे जहां पर आपका ऑक्युपाइड सेल है. सचिन. ओके. अब फिर इसके बाद जब हमारा पाथ बन जाएगा तो उसके जहां से हमने चालू किया था वहां पर प्लस, फिर उसका अगला टर्न होगा वहां पर माइनस, फिर उसके अगले टर्न पर प्लस. इस तरह से हम प्लस माइनस रख देंगे. और फिर प्लस माइनस रखने के बाद जहां जहां एलोकेशन है उसमें देखेंगे कि माइनस वाले साइन पर सबसे एलोकेशन कम किसमें है. जिसमें सबसे कम एलोकेशन होगा उसको हम वहां से हटा करके प्लस वाले साइन पर ऐड कर देंगे और माइनस वाले साइन पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके. और फिर यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो जाता. तो हमें पता है कि इस तरह से इसको वो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगी. तो लेट अस सी दिस प्रोसेस बाय एन एग्जांपल. तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक. It will be more clear with the example. So we have a question here. Find solution using Vogel's approximation method. Also find optimal solution using Modi method. तो आपने इस तरह का solution solve किया है WAM method से. तो let us I am directly showing the solution of WAM method.
So this is the VAM method initial feasible solution. Okay, when we have solved this problem by using VAM method, so this is your solution. And how many allocation this problem has? Let us check. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So first we have to check its degeneracy condition. Means either it is degenerate or not. Okay. So how many columns are there? 1, 2, 3, 4. And how many rows are here? 1, 2, 3. So 4 plus 3 minus 1 allocation should be for non-degeneracy. So let us check. 4 plus 3 minus 1, 4 plus 3, 7 minus 1, that is equal to 6. So how many allocations are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. It means this problem is are non-degenerate. Now again, अब देखिए जो स्टेप चालू होते हैं वो कैसे होते हैं. First, we have to find ui and vj for all occupied cells where cij equal to ui plus vj. Okay, so we have from a, मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, देखिएगा, for the occupied cells. This is our cells. So this for first allocation, that is u1 plus v1, and that is c11. So C11 equal to U1 plus V1. Okay, this is for first allocation, and the second allocation is this first row, fourth column. So C14. Okay, C14 equal to U1 plus V4. Okay. Now for the next, that is next allocation is on this S2D3, means second row, third column. So C23. Okay, C23 equal to U2 plus V3. Again, next allocation is your S2D4, means C24. So we will write C24 equal to U2 plus V4. Again, next allocation is third row, second column, means C32 equal to U3 plus V2 again. And the last allocation is S3D4, means third row and fourth column, C34. So we will write here C34 equal to U3 plus V4. So these are our equations to find the value of U1, U2, U3 and V1, V2, V3. Let us see, these are the equations. Okay, these are the equations that has been found. So let us check, we have to find the value of. अब मैं इसको यहाँ पर solve कर रहा हूँ. देखिए यहाँ पर C11 की वैल्यू, C11 की वैल्यू पहले है यहाँ पर 19. So 19 equal to U1 plus V1. This is our first equation. Okay. Now second, C14 में देखिए यहाँ पर ये 10 equal to, so this is 10 equal to U1 plus V4. Okay. Now for the third equation, C23 means this. So what is the value of C3j? Like 3.
C23, C23. So this is 40. So let down right here 40 equal to U2 plus V3. Okay. Now for C24, C24 में कितना एलोकेशन है 2 और Cij की वैल्यू है 60, मतलब कि C24 की वैल्यू, तो C24 की वैल्यू है 60 इक्वल टू U2 प्लस V4। हमने ये वैल्यू यहाँ पर लिख दिया। अब अगला C32 के लिए देखिए, C32 के लिए C32 ये 8, तो 8 इक्वल टू 8 इक्वल टू U3 प्लस V2। नाउ अगेन C34 में कितना है, Cij की वैल्यू 20, तो लेट्स राइट डाउन 20 इक्वल टू U3 plus V4. Now, these are the equations that we have. Again, how many V4 are here? 3. U1 कितने हैं 2, U3 हैं 3। तो इनमें से randomly we can select any one which has occurred most times equal to 0. So U3 and V4, these are occurring most of the times. So let's V4 equal to 0. Let's assume. Let V4 equal to 0. So after getting the V4 equal to 0, now we have to find all the values. Now we have to find all the values of U1, U2 and U3. देखिए यहाँ पर मैंने इस सेकंड इक्वेशन में V4 0 रखा, तो U1 इक्वल टू 10। ओके, अब यहाँ पर U1 है, देखिए U1 यहाँ पर है, U1 बराबर 10 आ गया है, तो मैं 10 यहाँ पर रखूंगा, तो V1 कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा इक्वल टू 9। ओके, सिमिलरली अब देखिए U1 और कहाँ पर है, U1 नहीं, यहाँ पर ये V4 0 है, तो U2 कितना आ जाएगा, U2 क्योंकि यहाँ पर V4 0 रख चुके हैं, तो U2 आ जाएगा 60। ओके, और V4 यहाँ पर 0 है, तो U3 कितना आ जाएगा, इक्वल टू 20। So now we have the values of U1, U2 and U3, and V1 equal to 9. And where is the V2? Where is the V2? Is there any allocation in V2? हाँ, ये वाले में है, कौन सा है, C32 कहाँ पर है, C32 ये रहा, तो ये रहा V2। ओके, तो अब हमें यहाँ पर रखना है, तो U3 कितना आया हमारा 20, U3 is 20, how much V2 equal to, V2 equal to how much, minus 12। okay, minus 12। now V3, where is the V3, this, U2 is your 60, so how much V3 will become, V3 will become equal to 60, so that will be go that side, so minus 20, and V4 you will write down here U3 that is 20, so V4 already 0। okay, so you have now ये सर कैसे लेते सर, C11 लिया, फिर सर C12 और C13 क्यों नहीं लिया, किसमें, C11 के बाद C14, C11, हाँ C14 इस वजह से कि हमने ये जितने भी निकाले हैं वो सब ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हैं। देखिए पहला एलोकेशन है हमारा C11 में, दूसरा एलोकेशन है हमारा C14 में, तीसरा एलोकेशन है हमारा C23 में, चौथा एलोकेशन है हमारा C24 में, पांचवा एलोकेशन है हमारा C32 में, और छठवां एलोकेशन है हमारा C34 में। तो देखिए 6 एलोकेशन है और हमारे पास 6 इक्वेशन बनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो जितने भी ऑक्यूपाइड सर ये सेल्स हैं, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है। नहीं, ये दिया नहीं होगा, ये ऑक्यूपाइड सेल्स तो तुम्हें निकालने पड़ेंगे ना। मैंने बताया ना कि ये वैम मेथड से निकालोगे तुम। ये वैम मेथड से निकालने के बाद फिर तुम्हें ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट यहां से करना है। ये U1 U2 दिया नहीं होगा, ये तुम्हें सर कैलकुलेट एक बार करना बता है। दीजिएगा सर वैम मेथड। कौन सा मेथड? वैम? यस सर। वैम तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा। सर मैंने क्लास नहीं ली थी, मैं बाहर ली थी। Okay, so I will share the YouTube lecture link that I have taken. ओके Okay, ओके सर। मैं YouTube का लेक्चर लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें से देख लीजिएगा वैम मेथड। नाउ हमारे पास ये अब U1 U2 U3 और V1 V2 V3 इन सब की वैल्यूज है। अब देखिए, आप जो पूछ रही थी DIJ, अब हमारे पास जब ये सारी वैल्यूज हैं, अब हमें DIJ निकालना है। देखिए, नाउ चूज द मिनिमम नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम द ऑल DIJ। तो अब DIJ हमें कैसे निकली है? इस तरीके से देखिए, DIJ फॉर नॉन ऑक्यूपाइड सेल, मैं एग्जांपल के तौर पर एक बता रहा हूं, तो उसके बाद फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट डी, सबसे पहला DIJ कौन सा है? देखिए यहां पर सबसे पहला है हमारे पास ये दूसरा वाला D12, जो पहला नॉन ऑक्यूपाइड सेल है हमारे पास D12। 6 एलोकेशन से तो हमारा C11 में है, लेकिन C12 में नहीं है। मतलब कि अब हमें चाहिए D12। ये हम जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनको D12 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास D12, या कहीं कहीं इसी को लिखते हैं डेल्टा 12। ओके, ठीक है। तो मैं D12 तो स्मॉल में लिख देती हूँ, इक्वल टू, अब फॉर्मूला था हमारे पास CIJ माइनस ब्रैकेट के अंदर UI प्लस VJ, UI प्लस VJ। ओके, तो अब देखिए नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए पहला जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स है वो है D12, और इसके लिए मैं D12 की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो यहाँ पर CIJ की वैल्यू है 30। ठीक, तो मैंने यहां पर रखा इक्वल टू 30 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर यहां पर कौन सा आएगा? U1 और V2, ठीक, और यहां पर आएगा C12। अब देखिए यहां पर U1 की वैल्यू है हमारे पास 10, ओके, 10 प्लस V2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 12। तो मैंने यहां पर कर दिया माइनस का 12। ओके, प्लस था लेकिन माइनस 12 की वजह से हमने यहां पर माइनस कर दिया। तो यहां पर कितना बचेगा? माइनस का 2, -2 विल बी रिमेन हियर। ओके, सो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा कितना? इक्वल टू 32। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमने D2 निकाला है ये आ गया 32। ठीक, सिमिलरली इसी तरह से जितने भी नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, अब देखिएगा हमारे पास जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं D12, D13, D21, D22, D31 और D33। ओके, तो लेट्स चेक, हमारे पास ये रहे, देखिए D12, D13, D21, D22, D31 और D33। तो दीज आर द वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, ये हमारे सब नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए है। नाउ वी हैव टू सी एनी ऑफ दीज हैव नेगेटिव वैल्यू। अब इनमें से क्या किसी में नेगेटिव वैल्यू है? 32 नहीं, 16 नहीं, 1 नहीं, -18, ये एक मिला, फिर 11, फिर 70, ओनली -18 है। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा नेगेटिव होते हैं, मान लीजिए एक से ज्यादा नेगेटिव होते, तो उसमें से जो सबसे कम वैल्यू है, मतलब कि जैसे नेगेटिव में जितना आप ज्यादा बढ़ते जाएगी वैल्यू, उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर -20 होता तो फिर हम -20 लेते हैं, -30 होता तो -30 लेते हैं। तो इस तरह से जो नेगेटिव में वैल्यू होती है हम उसको लेंगे। तो मतलब हमारा कौन सा है? D22। अब इस कॉस्ट जो हमारे पास ये है,
इसका मतलब कि इस सेल में हम कुछ ऐसा इंप्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंप्रूव हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि D22 है, देखते हैं कहां पर, ये मैंने सब जगह एलोकेट किया हुआ है। देखिए जो अपॉर्चुनिटी था ये 32, 60, 1, -18, 11 और 17, ठीक। अब ये जहां पर ये आया है माइनस का 18, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक क्लोज लूप लूंगा। वो कैसे, मैं एक एरो बना रहा हूं, देखिएगा यहां से मैं ले रहा हूं एरो, कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा कि जहां से हम लेंगे, जहां से शुरुआत करते हैं वहीं पर आकर के हम खत्म भी करेंगे। मैंने आया यहां तक, कहां तक, 62 वाले लोकेशन में, जहां से मैंने शुरुआत की है, और ये कहां पर जाएगा, जहां पर एलोकेटेड सेल है। ये जो एरो मैं बना रहा हूं ये वहां पर जाएगा जहां एलोकेटेड सेल है, क्योंकि ये वहीं से 90 डिग्री पर टर्न होगा वहां जहां एलोकेटेड सेल है, और जब हर जगह से होके गुजरेगा और खत्म वहीं पर होगा जहां से इसने शुरुआत किया है। तो अब देखिए जब मैंने इसको लिया है तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा, अगर मैं इस एरो से इस ऊपर की तरफ जाऊंगा D4 की तरफ, तो यहाँ एलोकेटेड तो है, फिर यहाँ से फिर अगला जाएगा तो वो यहाँ 19 वाले पे आएगा जहाँ 5 एलोकेशन है। लेकिन जब ये यहाँ से नीचे कहीं मुड़ेगा, चाहे 70 पर चाहे 40 पर, यहाँ कहीं एलोकेशन नहीं है, तो यहाँ से फिर मुड़ने के लिए इसको पास जगह नहीं है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर आती है। यहाँ पर इसके लिए मुड़ने की कोई जगह नहीं है, जिससे कि ये उस जगह से मुड़ करके यहीं अपना 30 वाली जगह पर आ जाए, तो ऐसा नहीं है। तो ऊपर की तरफ ये नहीं जाएगा। अब नीचे की तरफ से आते हैं, तो यहाँ से देखिए 2 से ये 10 की तरफ आया, यहाँ 10 एलोकेशन मिल गया, तो यहाँ से मुड़ेगा, ये यहाँ पर 8 पर आएगा, 8 से फिर ये यहीं पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि मतलब कि ये वाला लूप हमारे पास बन जाएगा। कौन सा, ये यहाँ से मैंने थ्रू किया 62, 10, ठीक, एक ये बना, और फिर यहां से एक और बनेगा हमारा, कहां तक, इस 8 तक, कहां से, इस, अरे ये सही नहीं बना, इस 10 से शुरू होकर के 8 वाले तक जाएगा। ये मैंने ये 8 तक बना दिया, ठीक। और इस 8 से देखिए जब फिर मुड़ेगा तो फिर ये वहीं पर पहुंच जाएगा। तो मैंने ये यहाँ से एक एरो ये लिया और इसको वहीं पर पहुंचा दिया, तो ये हमारे पास एक क्लोज पाथ लूप बन गया, ठीक। अब देखिए जहां पर ये लूप पाथ बना है, इसके 4 कॉर्नर हैं, ऐसे कितने भी कॉर्नर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लूप। जहां से माइनस है, यहाँ पर माइनस है, वहां मतलब कि -18 आया था ये, तो जहां से हमने शुरू किया है वहां पर हम प्लस साइन असाइन करेंगे। फिर उसके आगे जहां को एरो गया है, मतलब 60 पर आया है, तो हम यहाँ पर माइनस असाइन करेंगे, ठीक। फिर आगे अल्टरनेटिव हमें करना है, तो फिर हम यहाँ पर फिर प्लस करेंगे 10 वाले पे, और फिर यहाँ पर 8 वाले पे फिर माइनस। तो अगली उसमें देखिएगा ये मैंने असाइन किया, यहाँ पर -18 था, ये प्लस किया, फिर ये 2 पर आए थे, ये मैंने माइनस किया, 10 पर आए थे, ये प्लस किया, और ये 8 पर आए थे, ये माइनस किया, ठीक। तो ये हमारे पास एक लूप बन गया। अब इस लूप में जहां पर भी एलोकेशन कॉर्नर पर हैं, प्लस माइनस वाले जितने भी कॉर्नर पर एलोकेशन है, उनमें से हमें देखना है कि सबसे मिनिमम एलोकेशन कौन सा है, सबसे मिनिमम एलोकेशन। तो देखिए एक कॉर्नर ये था 2 वाला, एक कॉर्नर ये था 10 वाला, एक कॉर्नर ये था 8 वाला, ठीक। तो इनमें से सबसे मिनिमम एलोकेशन है 2, जो सबसे मिनिमम एलोकेशन है वो है 2। तो अब इस 2 को हमें क्या करना है, जहां जहां प्लस साइन था वहां पर ऐड कर देना है, और जहां जहां माइनस साइन था वहां पर इसको घटा देना है। मतलब कि देखिए यहाँ पर 30 वाले में प्लस साइन है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर पहले कोई एलोकेशन नहीं था, अब ये यहाँ पर 2 एलोकेशन हो जाएगा प्लस वाले साइन पे, ठीक। इस 7 वाले पे कोई साइन नहीं है, 60 वाले पे माइनस साइन है,
तो यहाँ पर हम इसको घटा देंगे, तो 2 में से 2 चला जाएगा, 0 बचेगा। फिर अब ये 20 वाले पे आएंगे, तो 20 वाले में प्लस साइन है, तो जो 2 था यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पहले 10 यूनिट थी एलोकेशन की, अब वो हो जाएंगी 12 यूनिट। ठीक, फिर आगे यहाँ पर ये माइनस आएंगे, तो यहाँ पहले से 8 यूनिट थी, लेकिन अब हम इसमें से 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 8 - 2 6। तो अब नया जो एलोकेशन बन जाएगा वो कहाँ कहाँ पर होगा, इस 6 जहाँ 60 वाला एलोकेशन था उससे घट करके ये 30 वाले पर आ जाएगा, और जहाँ प्लस माइनस थे ये 10 की जगह 12 हो जाएगा, 8 की जगह 6 हो जाएगा, और ये 2 वाला हट जाएगा। तो अब देखिए जो अगला एलोकेशन है, ये देखिए अगला एलोकेशन क्या हुआ, ये 30 वाले पे मैंने 2 कर दिया, 40 वाला 7 ज्यों करते हो, यहाँ पर 2 था, इस 60 वाले पर 2 था, लेकिन जब 2 - 2 किया तो ये खत्म हो गया। और फिर यहाँ पर 10 था, देखिए यहाँ पर ये 10 था, अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 8 था, देखिए यहाँ पर 8 था, अब कितना हो गया 6। तो अब हमारे पास एक नई टेबल बन गई, नई एलोकेशन टेबल बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से इसको निकालना है, क्या, वही U1 V1 V2 V3। तो देखिए मैंने फिर अगेन से ये किया है, अब हमारे पास जो एलोकेशन है वो बदल जाएंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहला एलोकेशन यहाँ पर था, अब जो एलोकेशन है वो यहाँ पर है, तो अब हमारे पास जो कुछ वैल्यूज हैं U1 U2 की वो सब कुछ बदल जाएंगे, कुछ बदलेंगी, कुछ वही भी रह सकती हैं। ठीक, तो देखिए और ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए C11, ऐसे जब हम C11 C14 C34 C32 C22 C23 इनको जब हम सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे, तो V1 की वैल्यू 19, V4 की वैल्यू 10, U3 की वैल्यू 10, V2 की वैल्यू -2, U2 की वैल्यू 32, V3 की वैल्यू 8, और U1 हमने लेट किया था 0। ठीक, तो हमारे पास अब जो नए U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 ये आए हैं, इसके जरिए अब हम अगेन जो है क्या निकालेंगे, Dij, इसके जरिए हम अगेन Dij निकालेंगे। ठीक, तो Dij निकालने के बाद देखिए ये मैंने U1 की वैल्यू 0 लिख दी, U2 की वैल्यू 32, U3 की वैल्यू 10, ये Ui है, यहाँ पर Vj V1 = 19, V2 = -2, V3 = 8, V4 = 10। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने Dj अभी नहीं लिखा, तो अब देखिए मैंने Dj कैलकुलेट किया, D12, अब ये नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए है। नाउ दिस Dj इज फॉर नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स। ओके, तो देखिए D12 की वैल्यू आई है 32, D13 की वैल्यू आई है 42, यहाँ पर देखिएगा ये है। ठीक, फिर D2 की वैल्यू 19, D24 की वैल्यू 18, D31 की वैल्यू 11, D33 की वैल्यू 52। क्या यहाँ पर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है? 32 प्लस का है, 42 प्लस का है, 19 प्लस का है, 18 प्लस का है, 11 प्लस का है, 52 प्लस का है। ठीक, इसका मतलब इट मीन्स देयर इज नो एनी नेगेटिव वैल्यू। ठीक, तो इसका मतलब कि दिस इज आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखिए मैंने यहाँ पर सारी अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट ली थी हैं, 32 यहाँ, 42 यहाँ, 19 यहाँ, 18 यहाँ, 11 यहाँ, 52 यहाँ। अब अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती तो हम फिर वहां से एक लूप बनाना चालू कर देते हैं, और फिर वही लूप बनाते, और फिर वैसे ही जो हमारे पास एलोकेशन थे, जो मिनिमम वाला एलोकेशन था माइनस वाले पर, उसको एलोकेट करके दूसरे वाले पर करते थे। ठीक, लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यू आई है डीजे की वो सब पॉजिटिव है। ठीक, तो इसका मतलब कि अब हमारे पास इंप्रूवमेंट के चांसेस खत्म हो गए, सिंस ऑल dij's आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो लेट अस चेक हाउ मच इज रिड्यूस्ड। देखिए हमारे पास जो नए एलोकेशन आ गए वो हैं ये वाले 5 2, ये पहले से थे, ये वाला यहाँ पर नहीं था। ठीक, ये एलोकेशन यहाँ नहीं था, कहाँ पर था, 60 में। ये दिस 2 वाज इन 60। तो ये एलोकेशन जब हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट की तो हमारे पास ये यहाँ आ गया, और हमने पहले इसको असाइन किया था 8 यूनिट, मतलब
कि इसको पहले हमने 8 यूनिट दिया था, अब हमने इसको कितना दिया 6 यूनिट। ओके, पहले हमने इसको दिया था D4 को 10 यूनिट, हमने पहले D4 को दिया था 10 यूनिट, अब हमने इसको कितना दे दिया 12 यूनिट। तो दिस इज द इम्प्रूवमेंट। ठीक, अब देखिए मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही 19 इंटू 5, 10 इंटू 2, 30 इंटू 2, 40 इंटू 7, 8 इंटू 6 एंड 12 इंटू 20। सो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो ऐड करके लिखेंगे वो वैल्यू आई है हमारे पास 743। ये है हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब जरा वैम मेथड चेक करते हैं, जो हमारे पास वैम मेथड था उसमें से कितना आया था। ठीक, और ये रहा हमारे पास वैम मेथड। जब हमने वैम मेथड से सॉल्व किया था तो हमारे पास कॉस्ट आई थी 779। अब हमारे पास कितनी है, नाउ वी हैव 743। ठीक, तो 779 और 743। सो हमने देखा कि हमारी कॉस्ट पहले से रिड्यूस हो गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं मॉडलिंग मेथड से। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इज देयर एनी चांसेस टू इम्प्रूव आवर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कितना कम हुआ 36, मतलब कि 36 यूनिट का हमारे पास डिफरेंस आया है इसमें। सो वी हैव इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन दैट इज 743। ठीक, तो ये रहा आपका मॉडी मेथड, और ये 100% लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। एक सिंप्लेक्स का आएगा और एक इसका। ठीक, जो आपके थर्ड यूनिट से जो लॉन्ग में आएगा उसमें से 2 क्वेश्चन होते हैं, आइदर मॉडी मेथड और योर असाइनमेंट। ठीक, तो असाइनमेंट में तो कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है, लेकिन अगर मॉडी मेथड आता है तो वो हमेशा लॉन्ग में ही आएगा। ठीक, तो ये आप इसको कंफर्म मान के चलिए। जैसे सिंप्लेक्स मेथड हर ईयर आता है, ऐसे ही ये भी मोस्टली हर 1-2 साल में रिपीट होता ही रहता है। तो नाउ if someone has any query, so you can ask now.